Good afternoon, students. Today we will continue our second lesson, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And today we will learn about Stalinism and collectivization. 1927 to 1928, Soviet Russia was facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices for the grain was rejected by the peasants. Stalin headed the party after Lenin's death. 1928, party members supervised the enforced grain collections from the producing areas and raided the kulkas, the name for well-to-do farmers. Stalin introduced a program of collectivization. Peasants worked on the lands of the owners of collective farms and the profit was shared. Those who resisted collectivization were severely punished or deported and exiled. Stalin treated independent cultivation unsympathetically. 1930 to 33, bad harvests leading to devastating famines with 4 million deaths. Accusations were made in the entire country, and by 1939, over 2 million were in prison or labor camps. Stalin was a Bolshevik leader after the death of Lenin. His ideology is known as Stalinism. In 1927 and 1928, the towns in Soviet Russia faced a severe problem of grain supplies. Why this problem occurred? This problem was occurred because government fixed prices at which grain must be sold. But the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. Stalin wanted to solve this problem, and for that he took very hard steps. He thought that this problem started because the rich peasants and traders, they have sufficient grain, but they did not want to sell their grains to gain higher profit. And for this reason he wanted speculation had to be stopped. Speculation means the activity of guessing possible answers to a question without having enough information to be certain. And in Hindi we call it satta. And he also ordered supplies confiscated. Confiscated का मतलब होता है जब्त करना. To take something away from somebody as a punishment. He took another measures also. He sent party members in 1928 to visit the grain producing areas and collection of grains of peasants without the permission of peasants. And raiding kulkas. Kulkas were rich peasants. They are known as kulkas in Russia. But all these steps took by the Stalin, problem of grain shortage was not solved. Therefore, he took decision of collective farms. Now we learn about collective farms. Collective farming and communal farming are various types of agricultural production in which multiple farmers run their holdings as a joint enterprises. There are two broad types of communal farms. Agricultural cooperative, in which member owners jointly engaged in farming activities as a collective. And state farms, which are owned and directly run by a centralized government. The process by which farmland is
aggregated is called cultivization. In Soviet Union had both kolkhozy cooperative run farms and sovkhozy state run farms. He said that grain shortages were due to small size of holdings, and these holdings could not be modernized, and to develop modern farms it was necessary to eliminate kulkas and take away land from peasants and establish state-controlled large farms. From 1929, the party forced all peasants to cultivate on collective farms. Another name is kolkhas, and lands were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the profit was shared. Angry peasants destroyed their animals, and therefore number of cattle decreases very rapidly. The peasants who opposed cultivation were punished. Many peasants left country and many peasants were put in the jail. The peasants told to the party they were not against the socialism, but they did not want to work in collective farms for many reasons. After cultivation also, production of grain did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 was one of the reasons of famine in Soviet Russia, when 4 million people were died. Slowly, party people criticized the results of cultivation. To suppress this, Stalin and his supporters punished the people who opposed them. Their fault was only that they opposed Stalin, and for this 2 million people were in prisons or labor camps. And now we see in Hindi. स्टालिनवाद और सामूहिकता। 1927-28 सोवियत रूस अनाज की आपूर्ति की गंभीर समस्या का सामना कर रहा था। सरकार ने अनाज के लिए निर्धारित कीमतों को किसानों द्वारा अस्वीकार कर दिया था। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने पार्टी का नेतृत्व किया। 1928 पार्टी के सदस्यों ने उत्पादक क्षेत्रों से लागू अनाज संग्रह की निगरानी की और कुलकों पर छापा मारा, जो कि संपन्न किसानों का नाम था। स्टालिन ने सामूहिकरण का एक कार्यक्रम पेश किया। किसान सामूहिक खेतों के मालिकों की भूमि पर काम करते थे और लाभ साझा किया करते थे। जो लोग सामूहिकता का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी या निर्वासित किया जाता था। और स्टालिन ने स्वतंत्र जो लोग खेती करते थे उनके साथ असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया। 1930 से लेके 33 तक खराब फसल के कारण 4 मिलियन लोगों की मौत के साथ विनाशकारी अकाल पड़ा। पूरे देश में आरोप लगाए गए और 1939 तक 2 मिलियन से अधिक जेलों या श्रम शिविरों में थे। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। स्टालिनवाद और
सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। क्या हुआ था? तो 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। यानी क्या? सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी, फिक्स कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए किसान तैयार नहीं थे। अब इस वक्त क्या हुआ? तो लेनिन के बाद पार्टी किसने संभाली? तो लेनिन के मृत्यु के बाद जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी संभाली या जो बोल्शेविक नेता बने, उनका नाम था स्टालिन। स्टालिन ने क्या किया कि ये जो स्थिति या जो संकट पैदा हुआ था, उसको निपटने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए और क्यों उठाए? तो उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी, उनके पास अनाज के भंडार तो है, पर वो अपना अनाज नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वो ज़्यादा कीमत पर उस अनाज को बेचना चाहते थे, ऐसा स्टालिन को लगता था। और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए स्टालिन ने क्या किया? सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया। सट्टेबाजी यानी क्या? आप लोगों को पता है ना कि किसी भी चीज़ के परिणाम के बारे में पता नहीं होता है, पर पैसा लगाते हैं लोग, उसको कहते हैं सट्टा। सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना ज़रूरी था, ऐसा स्टालिन मानता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? तो 1928 में पार्टी के सदस्यों ने जिन जो अनाज के उत्पादक थे, उनके घरों में जाकर क्या किया? उनके घर से अनाज को जब्त किया। और क्या किया? तो उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। ठीक है। अब आपके इसमें देखो लिखा हुआ है कुलक। कुलक यानी क्या? रशिया में जो धनसंपन्न किसान थे ना, अच्छे परिवार के, जिनके पास बहुत धन है, उन लोगों को कहा जाता था कुलक। आ गया समझ में ना? हाँ। अब उन्होंने क्या किया? स्टालिन के पार्टी के लोगों ने तो ये कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। और फिर क्या? उसके बाद क्या किया? उसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। और ये सामूहिकीकरण के लिए क्या बताया गया? क्या तर्क दिया गया? तो उन्होंने कहा कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था कि 1916 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी थी, सामंतों वगैरह से लेकर। ये आपको पता ही है ना? अब उन्होंने क्या कहा कि भाई किसानों के पास, ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और उसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें आधुनिक मशीनों से खेती नहीं हो सकती क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा है। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए जो कुलक है, जो धनी किसान है, उनको सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा। नष्ट करना पड़ेगा मतलब क्या? उनकी संपत्ति, मतलब उनकी ज़मीनें लेनी चाहिए। किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी माना गया। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। और सामूहिक खेतों को रशियन लैंग्वेज में या रशियन भाषा में कहा जाता था कोलखोज।
आ रहा है ना बात समझ में? अब हम पहले देखते हैं कि सामूहिक खेती यानी क्या। सामूहिक खेती और सांप्रदायिक खेती विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन है जिसमें कई किसान एक संयुक्त उद्यम के रूप में अपनी या जिस प्रक्रिया के द्वारा खेती को एकत्रित किया जाता है उसे सामूहिकीकरण कहा जाता है। सोवियत संघ में दोनों ही राज्य संचालित है, सहकारिता आधारित है, और कोलखोजी सहकारी रन फार्म और सोखोजी राज्य संचालित फार्म। अब सांप्रदायिक खेतों के दो व्यापक प्रकार हैं। कृषि सहकारी समितियां, जिसमें सदस्य मालिक संयुक्त रूप से एक सामूहिक और राज्य के खेतों के रूप में खेती की गतिविधियों में संलग्न है, जो स्वामित्व और सीधे तौर पर संचालित है केंद्रीकृत सरकार के द्वारा। उसको कहा जाता है सामूहिकीकरण। समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी किसान सामूहिक खेतों पर फिर काम करने लगे और क्या हुआ कि कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता। मतलब सब लोग एक बड़े खेत पर सब मिलकर खेती करते थे और उससे जो मुनाफा होता था वो सभी में बराबरी में बांट दिया जाता था। पर इस फैसले से क्या हुआ कि किसान बहुत चिढ़ गए। क्यों चिढ़ गए? क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई इससे उनका नुकसान हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना विरोध जताने के लिए किसानों ने क्या किया, उनके पास जो जानवर थे, मतलब खेती के लिए या दूध वगैरह के लिए जो उनके पास जानवर थे, उन जानवरों का कत्ल करना शुरू किया, क्योंकि उनको गुस्सा आया था सरकार के आदेश पर। अब इससे क्या हुआ, देखो, सामूहिकीकरण का विरोध। अब क्या हुआ कि सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों से निपटने के लिए स्टालिन और पार्टी के लोगों ने क्या किया, उनको सख्त सज़ा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को तो निर्वासित यानी देश से निकाल दिया गया। और ये जो सामूहिकीकरण का जो विरोध करने वाले किसान थे, उनका ये कहना था कि ना तो वो बहुत अमीर है, ना ही समाजवाद के विरोधी है, बस बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से वो सामूहिक खेती पर काम करना नहीं चाहते हैं। पर स्टालिन सरकार ने क्या किया, स्टालिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और सामूहिकीकरण के बावजूद जो फसल है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। और इसके क्या हुआ, उल्टा एक और ख़राब घटना घटी। क्या हुआ, तो 1930 और 33 सारी फसल जो है रशिया की, वो रूस की, वो क्या हो गई, ख़राब हो गई। और इसके बाद और क्या हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, मतलब रशिया में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण 4 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टी के सारे लोग जो है, पार्टी के लोगों में भी क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। आलोचना करने मतलब वो इस व्यवस्था को नाम रखने लगे। तो क्या हुआ, ऐसे आलोचकों पर या जो उसका विरोध कर रहे थे उनके ऊपर स्टालिन ने क्या किया कि भाई ये लोग समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या साजिश रच रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए। और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोग स्टालिन के पार्टी के लोगों के द्वारा या तो
जेलों में उनको बंद कर दिया गया या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। और एक बात इसमें बहुत यह है कि ज़्यादातर लोगों ने कोई भी अपराध नहीं किया था, बस पर उन लोगों का सुनने वाला कोई भी नहीं था। और तो और जो लोग स्टालिन का विरोध करते थे उसके लिए उन्होंने एक और तरीका भी अपनाया था। उसके अनुसार वो क्या करते थे कि ज़बरदस्ती लोगों से उनको बहुत यातनाएं देकर उनसे लिखवा लेते थे। क्या लिखवा लेते थे? बयान लिखवा लेते थे कि भाई हमने समाजवाद के विरुद्ध हिस्सा लिया है, जबकि उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी उनसे ज़बरदस्ती, और कभी कभी तो जिन्होंने बयान दिए उनको तो मार भी दिया गया। समझ में आया बेटा? अब हम आगे पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं, या ये हमारा अब आखिरी लेसन का आखिरी हिस्सा है। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR. The idea of a state of workers inspired many people. Communist Party was formed in many countries. Many non-Russian participated in the Conference of the Peoples of the East in 1920, and Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. In Russia, industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens, and developmental projects were being carried out through repressive measures. The USSR as a socialist country had declined. Now, existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russian formed outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of East in 1920, and Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in USSR's Communist University of the Workers of the East. And by this time, the outbreak of the Second World War, USSR had given socialism a global face and world Now, what happened? By the 1950s, it was acknowledged within the country that style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution, and therefore in the world socialist movement too it was recognized that all was not well in the Soviet Union. And then what happened? A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and poor were being fed. But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. And therefore what happened?
By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, means it was ended. But in each country, the ideas of socialism were adopted in a variety of different ways. And here we complete our second lesson of history. Now we learn it in Hindi and then we concluded it. रूसी क्रांति और यूएसएसआर का वैश्विक प्रभाव। श्रमिकों की स्थिति के विचार ने कई लोगों को प्रेरित किया। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कई गैर रूसियों ने पूर्व के लोगों के सम्मेलन यानी 1920 में भाग लिया और बोल्शेविक ने कॉमेंटम प्रो बोल्शेविक समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापन किया। रूस में उद्योग और कृषि का विकास हुआ था और गरीबों को भोजन कराया जा रहा था, लेकिन इसने अपने नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था और दमनकारी उपायों के माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। एक समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ का पतन हो गया। कब हुआ? अब हम इसको देखते हैं विस्तार से। बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कश के राज्यों की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी थी। क्या हुआ था? बहुत देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पार्टी बनाई गई, इंग्लैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी अपने या उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देश के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में हिस्सा लिया और बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बनाया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी और इससे क्या हुआ? पर 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? फिर इसलिए क्या हुआ कि सब वो बोलते थे कि सोवियत संघ में सब ठीक है, पर ये जानते थे कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को क्या हो रहा था? नागरिकों को जिस तरह की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी वो स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिल रही थी और 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया।
मतलब समाजवाद के कुछ कुछ जो आदर्श है वो कुछ कुछ देशों ने अपना लिए थे। बेटा यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। थैंक यू।